कवर कर लिया था, ठीक है ना। अब मैं मुझे बस एक ही चीज है कि आप वो बता दीजिए कि आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया या नहीं किया। अगर एनसीईआरटी सॉल्व किया है तो ऐसे केस में आपको अगर डाउट्स हैं तो मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बताइए। So we can move ahead. I've finished NCERT. तुमने कर लिया है? जी सर, पूरा कर लिया। उसमें कोई डाउट्स नहीं निकले? कोई डाउट्स नहीं सर। चलिए ठीक है, तो सार्थक, let's move to another chapter which is application of derivative. As we discussed in our last class, I'm starting this chapter today, and yes, this chapter in this chapter they have reduced some part of this chapter, like approximation. They have deleted this section, and the rate measure, they have deleted that section as well. So we are starting with increasing decreasing. That is the second exercise of your sixth chapter. So I'm starting from that exercise only. So let's discuss what an increasing and decreasing function means. Then we will discuss the questions one by one. Yes, so if they say that a function is increasing, that means the function is having two kind of definitions. One is by using application of derivative. That means by using derivative, we can identify how we can calculate the derivative of a function, and how we can say that by using that derivative, we can calculate the monotonicity of the function. But there is a standard method as well by which we can calculate the increasing, or we can check whether this function is increasing or decreasing. So I'm starting with that section only. X1, X2, this is fx1, fx2. So if I say that x2 is greater than x1, because x2 is on the right of x1 on the x-axis, so we can say that x2 is greater than x1. And when you apply the function, then fx2 must give the value which is greater than fx1. If it happens, so we can say that our fx is increasing, but it should happen to the entire interval. That means domain of the function. If it is happening to the entire interval, I can say that your function is strictly increasing. Good evening, Aniket. Strictly increasing. But if the nature is different, like in this case, if the nature is different, the nature is different here. This is fx1, this is fx2. Here x2 is greater than x1, but on the y-axis, you can see on the y-axis, you are getting fx2, which is less than fx1. So if your x2 is greater than x1, but you are getting the result in which your the value at x2 is lesser than the value at x1, so I can say that this kind of relation is strictly decreasing. So the nature of the graph in these kind of sections are, in this case it is increasing strictly, and in this case it is decreasing regularly. So these are the two, uh, we can say, the types of the standard method by which we can calculate either a function is increasing or it is decreasing. But this is a kind of, we can say, that traditional method where we didn't use any kind of differentiation. But in this chapter, we need to calculate the same nature. We need to show the same nature of the function, either it is increasing or decreasing, by the use of derivatives.
So for that matter, what we say, if a function fx is greater than 0 in an interval, for x belongs to some interval, we can say that this function is strictly increasing. And if your function f dash x is less than 0, for x belongs to some another interval I2, I can say this is strictly decreasing. This one is strictly increasing, this one is strictly decreasing. Again, if instead of this f dash x greater than 0, you can use f dash x greater than equal to 0 or f dash x less than equals to 0, but the equality should hold at some discrete points, or I can say that calculatable discrete points only. Then we can say that here this is at calculatable discrete points, so we can say that it is strictly increasing. Else we will say it as increasing only. So there are categories in which monotonically increasing functions can be divided. One is strictly monotonically increasing function can be a strictly increasing function, a non-decreasing function. That means in non-decreasing functions, your function will not decrease. It can have constant values. It can increase in some interval. It can have constant values, but it will not decrease. So all these kind of functions, all these categories comes under this monotonically increasing function. So monotonicity means a same kind of behavior. That means either it is increasing or decreasing. So how we will calculate this monotonicity of a function? By differentiation. So we will use this kind of approach in which f dash x must be greater than 0. Then we can say that it is strictly increasing. If it is getting f dash x greater than equal to 0, at some point it is getting equal to 0, we will say it increasing strictly. But if your function is making an interval, that means if I say our f dash x is greater than equal to 0, but equality is holding for an interval, like in this case. When you calculate the differentiation, equality will be held here through this complete interval. So these kind of problems, these kind of questions will come under non-decreasing portion. So whenever it is written that non-decreasing, that means your f dash x greater than equal to 0, in equality it is making an interval. But if they are saying that f dash x greater than equal to 0 is strictly increasing, that means uh, equalities is at, we can say that, some sort of discrete points, like we can count those points. So this is all about increasing and decreasing section. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise we can take one or two questions based on the same concept, then we can move forward. So could you please explain it again? देखो, बात ऐसा है कि ये है इसका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है अनिकेत? अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो ये इंक्रीजिंग होगा. इसका बिहेवियर कैसा रहेगा? x1 हमने x एक्सिस पे चूज किया, x2 हमने यहाँ पे चूज किया. x2 ग्रेटर है x1 से, और उसके लिए fx2 भी मैं fx1 से बड़ा ही पा रहा हूं. तो ऐसा ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाता है. ठीक है. फिर आता है ऐसा ग्राफ जिसमें डिक्रीज होता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है. तो इसमें x2 के लिए मुझे वैल्यू मिल रही है fx2, x1 के लिए मिल रही है fx1, x2 बड़ा है x1 से, fx2 छोटा है fx1 से. ऐसा केस कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्या यहां तक क्लियर है क्या निकेत? यस सर, यहां तक क्लियर है. अब क्या है, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव का यूज करके मुझे क्या बताना है भैया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पोर्शन बताना है. तो तुम देखो डेरिवेटिव का यूज करके मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा f डैश x जो है, फंक्शन का f डैश x निकालो. अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, जो भी इंटरवल दिया गया है, तो उसके लिए रहेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग.
अब कभी कभी क्या होगा, आप लिखा हुआ देखोगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया होगा उसने। सर ये तो सब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं. व्हाट हाँ, अबाउट जस्ट नॉर्मल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? वो नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं होता बेटा। नॉर्मल वाला केस या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। अगर कहीं भी इंक्रीजिंग लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो वो नॉन डिक्रीजिंग होगा। समझ रहे हो? नॉन डिक्रीजिंग ये टाइप का कैटेगरी रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये Okay, टाइप so का। basically, so it's not a curve, it can be curve and flat line also. बिल्कुल, है ना। इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का अपना कोई मतलब नहीं होता, और कोई दूसरी कैटेगरी आती नहीं इसके अंदर। आई बात समझ में? ठीक है। ठीक है सर. हाँ, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का कोई रिलेशन क्वांटिटी से नहीं होता है। ठीक है। कर्व का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर ये ग्राफ है मेरा, यहाँ पे चूज किया, ये ग्राफ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है ग्राफ, देखो जंप आ रहा है ना, हाँ जी सर. लेकिन ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ गए? तो इंक्रीजिंग लिखा है, इसका मतलब दो ही मतलब है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या नॉन डिक्रीजिंग रहेगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन जो इक्वालिटी है वो काउंटेबल पॉइंट्स पे आएगी, अलग अलग पॉइंट पे आएगी। जैसे x इज इक्वल्स टू 1 पे इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल्स टू मान लेते 9 पे आ गया, x इज इक्वल्स टू -12 पे आ गया। ऐसे अलग अलग पॉइंट पे आएगा, तो कभी इंटरवल नहीं बनेगा। इंटरवल कैसे बोलोगे अब तुम? जैसे इस केस में ये इंटरवल बन गया कि x बिलोंग्स टू a से लेके b के बीच में। अगर आप f डैश x निकालेंगे तो आपका f डैश x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल आ गया ना fx की वैल्यू। x एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब होता है, fx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरे इंटरवल के लिए क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये नॉन डिक्रीजिंग में आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आ सकता। निकेत, ठीक है सर. समझ गए? हाँ जी. अभी क्लियर हुआ बच्चे, या कुछ और एग्जांपल दूं किसी दूसरे तरीके से? नहीं सर, क्वेश्चन क्लियर है. है ना। इसी तरीके से यहाँ पे डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेस देन 0, लेकिन लेस देन इक्वल टू 0 हो गया और कोई इंटरवल नहीं बनाया, कुछ पॉइंट्स पे इक्वालिटी आ गया, तो भी मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग काउंट करूंगा इसको। ठीक है। लेकिन अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, x बिलोंग्स टू सम इंटरवल a कॉमा b बोल देता हूं मैं, जैसा एग्जांपल मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है अनिकेत, तो ऐसे केस में ये इंटरवल बना देगा। तो इंटरवल के केस में ये कैसा हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग। देखो ना, इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आई या नहीं आई बात? समझ में? हाँ जी सर. पूरा क्लियर हुआ सार्थक? यस सर. हुआ क्लियर? जी सर. बड़े आगे। यस सर. चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, शो करने वाले क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये शो करके दिखाना है मुझे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा ये वाला फंक्शन। तो पहले देखो ये वाला फंक्शन लेते हैं, ट्राई कीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन को अपने को क्या करना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव प्रूफ करने का कोशिश करना चाहिए।
जैसे ही हो प्लीज बताना मुझे, है ना। हुआ? No, sir. चलिए, yes, fx is equals to x minus 1 e to the power x plus 1, ये दे रखा है, मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है। क्या करेंगे? विल टेक f dash x, so we have to apply product differentiation of product function here. So these two are multiplied, so I'll take e to the power x as it is, differentiation of x is 1, differentiation of 1 is 0, plus x minus 1 as it is, differentiation of e to the power x is e to the power x, plus differentiation of 1 is 0. This is our f dash x. Now what we have to do is we have to check that either this is greater than 0 or less than 0, what we are getting. So 1 minus 0 is 1, 1 multiplied by e to the power x is e to the power x multiplied by e to the power x minus e to the power x, they will get cancelled. So we'll get f dash x is equals to x e to the power x. Now you are substituting x greater than 0 here, that means a positive quantity. So at this place you will get a positive quantity, and e to the power x is also positive, you will also get a positive quantity here. So this is positive into positive, you will get a positive quantity again. So that means you are getting x e to the power x as greater than 0 when you substitute x greater than 0. That means your function fx is strictly increasing for x greater than 0. Finish. All right, Sarthak, understood this? Sarthak, Aniket, Yes, sir. Yes, sir. any doubts, better? No doubt, sir. No doubt. Aniket, Aniket,
आवाज नहीं आ रही है अनिकेत मेरे पास। अगर बाई चांस तुम कुछ बोल रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम चैट में लिख दो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। डन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। ट्राई कीजिए।
डन बेटा। अनिकेत, सार्थक। Yes, sir, I think I'm done. हाँ तो बताना चाहिए ना, मैं वेट कर रहा था आपका। हाँ जी No, no, सर, sir, I just finished it, sir. अच्छा, अनिकेत हुआ? हो गया सर। ठीक है, मुझे करना है। जी सर, आप अपना अपना मेथड एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 3 × 2 × x +4। ये कितना हो जाएगा देखो, 3 यहां से बाहर निकाला जा सकता है, 3 बाहर निकाला हमने, x² माइनस ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 2x +4 एज इट इज। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है? -2x। तो -2 को आप कर दीजिए 2 से डिवाइड, उसका कर दीजिए स्क्वायर, उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो 2x + 1 - 1 + 4 इज 3 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर -1 + 4, 3 टाइम्स ऑफ x - 1 का स्क्वायर -3 + 4, 3 टाइम्स ऑफ x - 1 का स्क्वायर +1। ये हो गया एप्टीट्यूड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट विल यू सी, यू कैन सी दैट this will give us a positive quantity. 3 is also a positive quantity. When you multiply some positive quantity with some positive quantity, you will get a positive quantity. And when you add this positive quantity into some positive quantity, you will get a positive quantity. That means f dash x is always greater than 0 for x belongs to whatever it is. X belongs to R. Yes. So we can say that since we are getting f dash x greater than 0 for x belongs to R, we can say that this function is strictly increasing. This function will never get a value equal to 0, because we will never get a -1 as a result of this part, 3 × x - 1 whole square. So yes, this is always greater than 0. So we can say that this is strictly increasing. Any doubts, Aniket, Sarthak? नहीं सर। समझ आया सार्थक? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब है डिटरमाइन करने वाली सिचुएशन। हमें निकालना है कि किसके लिए इंक्रीजिंग रहेगा, किसके लिए डिक्रीजिंग रहेगा, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाइए, सॉल्व कीजिए आराम से, जैसे हो जाए मुझे बताइए।
हुआ सार्थक? No, sir, not yet. करो आराम से, कोई बात नहीं। करो सॉल्व। नहीं सर, अभी कर रहे हो आप? सर आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बस मैं एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? a। ये क्या होना चाहिए आपके पास में? ग्रेटर देन 0। तो बस कितना हुआ ये? अगर मैं यहां से कॉमन निकालने की कोशिश करूं, हमको वैल्यूज ऑफ a चाहिए, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन जो है मेरा इंक्रीज हो जाए। अब आप सोचो ना यार, एक सेकेंड, इंक्रीज होने का मतलब कैसा होता है? आप ग्रेटर देन 0। अब एक तो सिंपल तरीका है कि मैं इसे नंबर लाइन पे करूं प्लॉट, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद मैं आपको बोलूं कि यार उसका लेफ्ट चेक करो, राइट चेक करो, है ना, ये सारी की सारी चीजें चेक करो, ठीक है। एक तरीका तो हो गया ये, है ना। अब एक और क्या चीज की जा सकती है कि मैंने आपसे बोल दिया कि चलो जी ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए ये हो गया। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसको। 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, तो मैं ये बोल सकता हूँ 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a। मतलब a लेस देन 3x स्क्वायर। x बिलोंग्स टू r, ये भी x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? r। a लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास में? 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू r के केस में। बस एक ही जगह ऐसी होगी जहां ये पॉजिटिव क्वांटिटी से थोड़ा कम होगा, वो रहेगा x इज इक्वल्स टू
0। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 यहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0। तो a मेरा मतलब है लेस देन 0 अगर आप कर देते हैं, a की वैल्यू लेस देन 0 अगर आप कर देते हैं तो उसके लिए ये हमेशा कैसा देगा आपको, ग्रेटर देन 0 देगा। a लेस देन 0 का मतलब है, मान लेते हैं a की वैल्यू आपने -2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ -2 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो देखो ओवरऑल ग्रेटर देन 0। समझे? बस एक चीज देखो, अगर a की वैल्यू 0 भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा यार? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी ये वाला खत्म, 3x स्क्वायर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। बताइए कोई डाउट है? आया सार्थक समझ में? अनिकेत समझ में आया? यस सर, यस सर। है ना कि a की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो गई तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू आपको देगा। अनिकेत समझ आया बच्चे? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन दे दूं? जी सर। चलिए, ये निकालिए आप। ये निकालिए, सॉल्व कीजिए।
Sir, are you speaking? Because I cannot hear you, sir. Yes, Aniket. I thought you were speaking, sir. नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला यार। तुम्हें नहीं सर, आवाज आ मैंने रही थी क्या? पूछा था। नहीं सर, मैं पूछा था इसलिए क्योंकि आपका पॉइंटर हिल रहा था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो पॉइंटर तो मैं जानबूझ के हिला रहा था ऐसे ही, ताकि तुम्हें लगे कि मैं बैठा हुआ हूँ, अदरवाइज तुमको लगे पता नहीं चलेगा कि कहीं पे। अभी हुआ क्या क्वेश्चन? ऑलमोस्ट सर। You're taking so much of time. Should I solve it? Yes, sir. Okay. So find the interval in which fx minus x square minus 2x plus 15 is increasing or decreasing. So fx is equals to minus x square minus 2x plus 15. So for that type of questions, we need to differentiate once, which is minus 2x minus 2, and make it equal to 0. So minus 2 is common, x plus 1 is equals to 0. This minus 2 is not equal to 0, but this x plus 1 can be, so this x plus 1 is equal to 0, which is x is equals to minus 1. Now what we have to do is we have to draw number line where we have to write this critical point. We call it as a critical point. So this is x-axis and we are having x is equals to minus 1 here. Now what we have to do is we have to
we are checking the sign of f dash x. F dash x, that means where we can take either the right side of -1 or left side of -1. That means the values of x either on the right side or on the left side. And by after picking this value, after choosing this value, we need to substitute that value into this expression, and then we have to analyze what sign it is getting. That means on the right side of -1 we will be getting 0, 1, 2, 3, 4, 5. So we can take any value from this right side. So I can take x is equals to 0. Now I can substitute x is equals to 0 here. So this is -2 times of 0, -2. That means f dash 0 is equals to -2. That means a negative quantity. We are not interested in the magnitude. That means in this quantity, we are interested in this sign. And the sign what we are getting is negative. Sign we are getting a negative. Again, we need to substitute a value which is on the left of this -1. So I can take -2 and then I can substitute this -2 over here. So this is -2 into -2 -2. So f dash -2 is +4 -2, which is +2. Now this +2, again we are interested here in the positive sign. So the sign we are getting is positive. So that means your f dash x is getting a positive sign on the left side of this -1 and a negative sign on the right side of this -1. So that means your f dash x is greater than 0 on the left side of -1 when x is less than -1, and your f dash x is less than 0 for x greater than -1. We have to define the intervals where your function is increasing or decreasing. So it is very clear here that from infinity, open interval, -infinity to -1, you can take an equals to here, because at x is equals to -1 you are getting f dash -1 as 0. So 0 can be included on both the sides. So for that portion, your function is increasing, and for this you can write -1 to infinity. This is decreasing. This is decreasing. So the interval in which fx is -x square minus 2x plus 15 is increasing or decreasing. That is the solution. मतलब मैंने पहले उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया, फिर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू को उठा के मैंने एक्सप्रेशन में डाला, जो भी साइन आया उस साइन को यहाँ पे लिख लिया, फिर मैंने लेफ्ट साइड की वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाला, जो भी साइन आया उस साइन को यहाँ पे लिख लिया. ठीक है. अब क्या हुआ, साइन आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मेरे पास निकल के आ गए. तो जो पॉजिटिव साइड रहेगी, पॉजिटिव साइड वाला जो साइन रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. जो नेगेटिव साइड वाला रहेगा वो हो जाएगा डिक्रीजिंग, हो जाएगा डिक्रीजिंग. कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ता है. अनिकेत, सार्थक, So understood. अनिकेत समझ आया क्या बच्चे? सर आप एक बार जूम करेंगे फिर से, थोड़ा सा जूम. बताओ, और जूम करो. नहीं सर. समझ में आया? यस सर, बट एक सेकंड सर, मेरे को फिर से एक बार पढ़ सकता हूँ? हाँ, अरे टाइम लो यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं.
Okay, sir. Noted. ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, ट्राई कीजिए अगला क्वेश्चन। तो ठीक सा क्वेश्चन देते हैं, ये यही करो ट्राई, सिक्स्थ।
हुआ सॉल्व? अनिकेत, सार्थक? तो आप सॉल्व कर दीजिए, मैंने भी कर लिया, बट आप वेरीफाई करना है एक बार। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा? ये है 4x, उसका हो जाएगा 4, और ये 1/x जो है उसको लिखा जा सकता है, मैंने x को डिवाइड कर दिया दोनों जगह, x टू द पावर -1, तो हो जाएगा -1, x टू द पावर -1 इज -2, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो एक सेकंड, आपने अभी क्या करा सर? मैंने x को दोनों जगह डिवाइड कर दिया, 4x² डिवाइडेड बाय x, दैट इज 4x, सर आपने एक्स तो लिखा ही नहीं। क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ओके ओके, सर आपने डिफरेंशिएट भी करा है। ये 4x प्लस x इन -1 हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया। हाँ हाँ, ये सर मेरा मेरा विषय में, मेरा विषय में, सॉरी कंफ्यूज हो गया। 1 कितना बना, x²। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/x² इज इक्वल्स टू 4 या -4 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है 1/x² -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो 1/x -2 इंटू 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 1/x -2, 1/x इज इक्वल्स टू 2 और 1/x इज इक्वल्स टू -2। यहां से सर कितना हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते? क्या? So can we not take -2² on the other side and then just take the positive values? नहीं, यही तो मिस्टेक है, यही तो नहीं करना है। ठीक है अनिकेत? ठीक है सर, मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है। नहीं, यही तो मिस्टेक है, यही तो नहीं करना है। दो वैल्यूज आ रहे हैं तो दोनों के दोनों वैल्यूज को आपको लेना पड़ेगा। अब आपको 1/2 का राइट में कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1/2 से राइट में 1 भी आता है, x की जगह आपने डाला 1, तो f1 इज इक्वल्स टू 4 - 1/1², 4 - 1 कितना आ जाएगा आपके पास में 3। 3 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, -1/2 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लिया आपने, तो हो जाएगा 4 - 1/0 का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी बना देगा, मतलब आप 0 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब आपको 0 भी बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे भी इन्फिनिटी आ रहा है ना, एफ डैश एक्स, वो आप नहीं ले सकते, तो 0 से 1/2 के बीच में लेकिन आपको वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो जैसे आप 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू डालेंगे, ये नेगेटिव साइन देगा, कोई भी वैल्यू आप चूज करके देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में, हाँ -1/2 से 0 के बीच में कोई भी आप वैल्यू चूज कीजिए, उसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। फिर -1/2 से लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये नेगेटिव दे देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। अनिकेत, जो मैं बोल रहा हूं वैसे समझो, 1/2 के राइट में आप कोई भी वैल्यू डालो, ये पॉजिटिव आंसर देगा। 0 से 1/2, 0 से 1/2 के बीच में और कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0.5 हुआ ना, तो 0 से 1/2 के बीच में आप कितना, 0.4 डाल लो, तो f डैश 0.4 डाल के देखो, 4 - 1/0.4 का स्क्वायर। ठीक है, 0.4 कितना हो जाएगा, 4/10, तो 100/16 हो जाएगा। 4 माइनस 100/16, ये 4 से बड़ी क्वांटिटी देगा, तो 4 माइनस ये नेगेटिव, ये 96 - 100 डिवाइडेड बाय 16 हो गया, सही बोल रहा हूं ना, -4/16, सही है अनिकेत? तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अनिकेत, यस सर, यस सर। है ना? ऐसे ही तुम यहाँ पे चूज करो, यहाँ पे 0.4 लिया है, -0.4 ले लो, तब भी सेम ही आंसर, मतलब -0.4 को हम लोग उठा के देखे कोशिश करेंगे, तब भी ये वाला नेगेटिव ही देगा, पॉजिटिव नहीं देगा, नेगेटिव ही देगा। फिर से चूज कर लेते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, इसके बीच में ये कितना है, -0.5 है ये, उससे पहले -0.4 पड़ेगा, -0.3 पड़ेगा, तो माइनस डालूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा इसके अंदर, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट कैसा देगा आपको, फिर से नेगेटिव ही देगा। फिर -1/2 से लेफ्ट में -1 डाल के देख लो, -1 डालेंगे तो फिर से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि f डैश
-1 डाला, 4 -1 अपॉन -1 का स्क्वायर, 4 -1 कितना आ जाएगा 3। फिर से देखो इसका साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो बस आपको क्या चाहिए, आपको बताना है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, 1/2 से बड़ा और -1/2 से छोटा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब डिक्रीजिंग की बात करोगे तो -1/2 से 1/2, उसमें से 0 हटा दो, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये दो इंटरवल बनेंगे। नेगेटिव साइन कंटेनिंग डिक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव साइन कंटेनिंग इंक्रीजिंग होता है। अनिकेत, सार्थक, क्या बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ आया या नहीं समझ में आया? अनिकेत, कोई डाउट है बच्चे? सार्थक, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। तो समझ तो आ गया, बट आई थिंक समझ आ प्रैक्टिस गया सर। प्रैक्टिस के लिए ये शीट में अपलोड कर दूं, भेज दूं ग्रुप पे, जी सर। है ना? इसमें सारे मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन डाले हैं यार, अब ट्राई तो करके देखो। मैं तुम दोनों को पर्सनली फॉरवर्ड कर दूं, मेरे को हाई ड्रॉप करना है एक बार मेरे व्हाट्सएप पे, श्योर सर। Yes, sir. पर्सनली भेज देता हूं मैं ये। ठीक है, चलिए